سے تو وضاحت کر رہا ہوں، وضاحت چاہنا چاہ رہا ہوں کہ کسبی ملی ہے کہ یا اطاعت سے ملے، وضاحت کر دیں بس، کیا بات ہے اس میں بڑی بات نہیں۔ اچھا، یعنی کہ آپ اطاعت میں اور قصب میں فرق کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھے کہ میں جو نہیں ثابت کر سکا، ٹھیک ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا۔ وہ آپ سمجھا دینا، وہ آپ سمجھا یار دینا، آپ کو زیادہ پتا ہوگا۔ نہیں بھائی، میں آپ نے اچھا مجھے ان سے ہو صاحب سے پوچھ لیں کہ اگر آپ نے ختم نبوت پہ بات کرنی ہے تو ہم کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر لوگ خود ہی نتیجہ نکال لیں گے۔ اس دن کا تو نہیں پتا، لیکن آج کا پتہ چل جائے گا۔ پوچھنے ہو صاحب سے، اگر یہ کروانا چاہتے ہیں، دوسروں کو دلچسپی ہے تو کر لیتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کسی اور سے بات کر لیں۔ جی ہوسٹ صاحب سے آپ نے کوسچن پٹ کر دیا، ہوسٹ صاحب آپ رسپونڈ کر دیں۔ چلیں، اگر ہوسٹ صاحب میں ڈیلے ہے بولنے میں تو میرا ووٹ اس میں ہے کہ ڈسکشن جو ہے کسی جگہ بھی ہو، جب بھی ہو، اسے آبجیکٹ کرنے کی کوئی سینس نہیں بنتی، سو میرا ووٹ جی پار ہے جی۔ اچھا جی، سوری میں میوٹ تھا، میں بول رہا تھا۔ اچھا، وہ ساری پتہ ہے۔ نہیں سوکھے آپ نے، باقی یہ کہ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے اگر ختم نبوت، لیکن ٹاپک جو ہے وہ پہلے صحیح طریقے سے ڈیسائیڈ کریں، کیونکہ ختم نبوت اٹس بہت سے اس کے سائڈز ہیں، اینگلز ہیں، آیات ہیں، کس کے بارے میں کرنی ایگزیکٹلی ٹو بی، وہ پہلے ڈسکس کر لیں اس کو۔ اگر لگے گا کہ یہ آلریڈی اتنی دفعہ ڈسکس نہیں ہوا تو ضرور کریں گے ڈسکشن اس کو۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ٹاپک کو ذرا صاحب دیکھیں، اصل میں نے بار بار کہا ہے، اور بات بھی یہ درست ہے کہ اصل موضوع ختم نبوت ہی ہے، اور اس میں کوئی ایسا ابہام بھی نہیں، کیونکہ جب آپ نے ایک دیوار بنا دی اور آپ نے کہا یہاں سے پانی نہیں گزر سکتا، تو پھر آپ یہ سوال نہیں اٹھا سکتے دوسرے سے کہ یار کم گزرے گا، تم یہ مانتے ہو یا زیادہ گزرے گا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں گزر ہی نہیں سکتا، تو کم گزر گیا تو پھر بھی آپ کا دعویٰ غلط ہو گیا، زیادہ گزر گیا یا کم اور زیادہ کے درمیان پانی گزر گیا پھر بھی آپ کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ نبی کسی قسم کا آ ہی نہیں سکتا، تو اگر میں کہوں کہ دیکھو یہ آیات ہے کہ نبی آ سکتا ہے، یہ اس سے پہلے مجھ سے پوچھے اگر آ سکتا ہے تو کس قسم کا آ سکتا ہے؟ بھئی آپ تو کہتے ہو کسی قسم کا آ ہی نہیں سکتا۔ جب میں بتا دوں آپ کو کہ دیکھو آ سکتا ہے، تو پھر آپ کو اگر لگے کہ واقعی یار اس میں کوئی جان ہے، پھر آپ مجھ سے پوچھو اچھا جی اب کس قسم کا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل موضوع جو ہے ختم نبوت ہی ہے، یا تو اجماع ان کا جاتا ہے یا جماعت فارغ ہو جاتی ہے اس ایک عقیدے سے۔ تو یہ عقل مند کا کام نہیں ہے کہ اگر ایک تیر سے بندہ ڈھیر ہو گیا تو 100 تیر مزید چلائے۔ تو میں تو یہ عقیدہ دیکھیں رکھتا ہوں۔ ہاں جی، بٹ صاحب آپ تو پہلے سے ہی نتیجہ بنا رہے ہیں، میں تو کچھ بولا ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور نبوت کے سلسلے کو بند سیل آپ پر ہوا ہے۔ آپ بتا دینا آپ کے ہاں یہ جو نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ قیامت تلک جاری ہے کہ مرزا صاحب تک ہی ہے؟ سوری بٹ صاحب، یہ بھائی صاحب کا جو مسلک ہے وہ بتا دیں گے؟ جی بھائی صاحب، آپ سے سوال ہوا کہ آپ اپنا مسلک بتا دیں گے؟ پہلے سوال میرا جواب دے دیں، پھر میں مسلمان ہی ہوں، غیر احمدی ہوں، میرا یہی تعارف ہے۔ چلے میں سوال کا جواب دے کے پھر آپ سے سوال کرتا ہوں۔ جی قیامت تک نبی آتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نبی کو پیدا کیا، تو جب تک گمراہ انسان ہو سکتا ہے، انسان کا وجود قائم ہے، نبی آتے رہیں گے۔ اچھا، کیونکہ ظاہر ہے گمراہ لوگوں پہ ہی قیامت آئے گی نا، نیک لوگوں پہ تو نہیں آئے گی۔ تو جب تک انسان گمراہ رہے گا، ہو سکتا ہے، امکان ہے، نبی آنے کا بھی امکان ہے۔ اچھا آپ بتائیں کہ آپ لو اب بیک گراؤنڈ پہ چلے گئے۔ میرا خیال ہے وہ سن رہے ہوں گے، میں بھی بیک گراؤنڈ میں گئے ہیں لیکن ہاں جی، جی اچھا جی آپ بتائیں کہ اگر آپ کے سامنے دیوبندی علماء کی تحریریں یا شیعہ علماء کی تحریریں پیش کر دی جائیں، کیونکہ آپ ان کے نمائندے کے طور پہ آئے ہوئے ہیں، تو آپ پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں ان کو نہیں مانتا؟ کیا کہتے ہیں؟ اگر بریلوی علماء کی نہیں، تحریریں پیش کر دی، یا تو آپ ان کے نمائندے نہیں ہیں۔ ہاں جی، پہلی والی بات کو نپٹا دینا، جو پھر بعد والے آتے ہیں میں نے تو دیکھا سوال کا جواب آپ دے کی کے، ہاں سوال کا جواب دے کے آپ سے سوال وہ کیا ہے۔ وہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو جواب دیا ہے نا، یہ میرے خیال سے آپ کے اپنی کتب ہی اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا یہ جواب میں دے دیں، کہتا پھر ہوں۔ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں، پھر آپ کا یہ سوال جو ہے یہ کر دیں مجھ سے،
تو پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ نہیں اگر میں آپ کے کہہ رہا ہوں پاس یا نہیں اگر بٹ میری صاحب بات میں سنیں کہہ رہا ہوں آپ نے جو کہا کہ یار یہ میں نبوت جواب کا دیتا سلسلہ ہوں لیکن قیامت تلک جاری ہے. ہاں جی سوال قیامت ایک تلک کریں گے جاری ہے. آپ, ایک سوال آپ کریں گے کہ میں کروں گا؟ آپ سے سوال یہ نہیں وہ کیا سوال نہیں نا, یہ پہلا سوال ہوا نہیں نا, یہ یار؟ ختم نہیں ہوا چلو صاحب. اوہو میں چل کہہ آپ رہا کسی ہوں آپ نے دوسرے جو سے ابھی کریں. دیکھیں عبارت آپ پیش مجھ کی. سے کرنا چاہ رہے تھے بات, تو میں نے اس طریقے سے چلائی جس طریقے سے آپ کرنا چاہ رہے تھے, تو آپ اب جواب نہیں دے رہے, آپ کسی دوسرے سے کریں. اچھا چلے میں اپنا ایک نہیں سوال میں کر دیتا بس ہوں, سوال مکمل کر دیتا ہوں تاکہ دوسرے سیکھے اس بات سے کہ سوال کیسے کرنا ہے. اچھا اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں, اور اگر ہم آپ کو بریلوی علماء کی تحریریں پیش کریں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا, تو مطلب یہ بنے گا کہ آپ کے نزدیک بریلوی علماء نے گمراہ کن تعلیم پیش کی ہے. تو اگر گمراہ کن ہے تو پھر آپ کو پہلے اکثریت کو سمجھانا چاہیے, گمراہ ہونے سے بچانا چاہیے. آپ اقلیت کے پیچھے بھاگ گئے, یعنی کہ ہم تو آپ کا 1% بھی نہیں ہوں گے. تو بریلوی شاید وہ 90% ہوں گے مسلمانوں. تو بھائی اگر وہ گمراہ کن تعلیم کا عمل کر رہے ہیں ان کو سمجھائیں جا کے. پہلے عقل مند بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ پہلے چھوٹے نقصان کو اپنا حل کرے, پھر جو بڑا نقصان ہے وہاں سے پہلے اپنے آپ کو بچائے. یہ نہ ہو کہ چھوٹا نقصان کو سے بچتے بچتے بڑا نقصان ہو جائے. تو آپ ان کی طرف جائیں, ان کو سمجھائیں, پھر آپ ہمیں آگے سمجھائیں. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں سوال تو آپ پھر گھما لے کے ادھر چلے گئے فرقوں کی طرف. پھر آپ سے میں پوچھوں گا لاہوری گروپ دوسرے گروپ, تو یہ نہیں جائے گا نا. پہلا جو آپ سے میں نے کہا, آپ نے جو دعویٰ پیش کیا کہ نبوت کا سلسلہ بند ہے نا, ہاں جی, جاری ہے قیامت تلک, ہاں ٹھیک ہے آپ نے کہا. میں کہہ رہا ہوں اگر اس دعوے کی کوئی مخالفت کر دے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی کیا وہ قرآن و سنت سے کی مخالفت کر رہا ہے, یا وہ گمراہ ہے اس کا عقیدہ جی یا نہیں؟ دیکھیں, ہاں جی آپ لاہوری کا گروپ کا کریں, میں آپ کو جواب دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ عقل مند بندے کا یہ کام نہیں کہ وہ بڑے نقصان کو چھوڑ کے چھوٹے نقصان کے پیچھے پڑ جائے تاکہ بڑا نقصان دوران ہو جائے. تو جو جہاں سے بڑا نقصان ہو رہا ہے, یہاں تو آپ کہیں گے آج کہ بریلوی علماء کی تحریریں آپ کو قبول ہے, یہاں تو آپ کہیں گے آپ بریلوی علماء کو نہیں مانتے. اگر نہیں مانتے تو بھائی ان کو پہلے پھر جا کے سمجھائیں, بھائی قرآن کے مطابق اپنے عقائد کریں. کیا کہتے ہیں؟ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, وہ کوئی انہوں نے نبوت کے دعوے نہیں کیا نا, ٹھیک ہے. اور وہ انسان ہے, خطا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ سارے درست ہیں اور کبھی خطا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. معصوم عن الخطا نہیں ہے, ٹھیک ہے. رہی بات آپ جو اپنے جو دعویٰ پیش کر رہے ہیں مرزا صاحب کا, آپ ان کو نبی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے قیامت تلک. میں کہہ رہا ہوں یہ جو اس عقیدے کی اگر کوئی مخالفت کر دے, یہ کہہ دے کہ اس نہیں جاری نہیں بند ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ گمراہ ہے یا نہیں؟ جی دوبارہ اگر وہ خطا کر سکتے ہیں اور انہوں نے کی ہے تو بھائی پہلے جا کے ان کو سمجھائیں نا کہ قرآن کے خلاف آپ تعلیم دے رہے ہیں. آپ کی تعلیم جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے, آپ سیدھی تعلیم کریں, پھر ہماری طرف آ جائیں, پھر ہم آپ کو جواب دیں گے. ٹھیک ہے. نہ آپ بریلوی کو مان رہے ہیں, نہ دیوبندی کو مان رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ خطا, سارے جب خطا کر رہے ہیں تو جن کو جا کے سمجھائیں. آپ اپنا وقت ہمارے ساتھ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ہم تو 1% بھی نہیں آپ لوگوں کا, چاہے آپ ان کو جا کے نہیں, اب سمجھائیں. آپ کا سوال کہاں جائے گا؟ آپ کا سوال ابھی آپ آپ نے کہا کہ دوسروں کو یار لوگ بات کریں, نتیجہ آپ اخذ کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ آپ بہت جس سارے طرح سوال دوست. سے بھاگ رہے ہیں, ہاں جی ایک میں مختصر سا سوال میں ہاں جی میں یہ بھاگ رہا دیکھیں, ہوں, میں آپ نے دوسروں سے مختصر سا بات کریں. سوال آپ سے پوچھا. جی میں بھاگ نہیں رہا ہوں, دیکھیں, میں اپنی کہہ رہا ہوں اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں. میں کہہ بھاگ رہا رہا ہوں ہوں. جو شخص یہ کہے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہے, قیامت تک جاری نہیں ہے, اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے دیں مختصر سی. جی میں نے اب کہا آپ میں کو موت بھاگ پڑ گئی ہے رہا کہنے میں. ہوں, میں کہہ رہا میں بھاگ رہا ہوں. آپ کسی اور دوست سے بات کر لیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. مجھے اب اجازت دیں. چلو اوپر ایسا میں پھر چکر لگاؤں گا کہ کوئی بات کرنے بٹ والی ہوئی تو. صاحب چلو میں آپ ٹھیک کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ اپنا عقیدہ درست کر لیں, ٹھیک ہے. ٹھیک کیونکہ ہے. آپ کے اپنی ہی کتب اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ہلو السلام نبوت کا علیکم. سلسلہ. ہلو السلام علیکم یہ اوپر آئے دوست سے بات جناب نہیں بٹ صاحب حوالہ ایک دیں. منٹ, جناب ٹھیک ہے, بسم اللہ اعلیٰ. میرا السلام سوال علیکم. تھا. بٹ صاحب ایک سیکنڈ بابا جی, آپ کو بھی لیتے جی ہیں. بٹ صاحب وہ ابھی آپ نے بتایا تھا عامر حق والی جو تحریر کل انہوں نے عربی والی لگائی تھی, اس کا ترجمہ جو کیا تھا, جی تو جی اس میں جو مطلب تھا وہ ڈفرینٹ تھا نا. تو یہ میں اس لیے پوچھا کیونکہ جب وہ اگر آئیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا ایگزیکٹلی کہ اس میں. دوبارہ ہاں جی, آپ ایسا کریں نا, میری بات سنیں, آپ ایسا کریں, گوگل ٹرانسلیٹر ملتا ہے نا, جی وہ جی صفحہ سکین کر کے اس کا آپ کو اردو میں ترجمہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 151 اور 152 اور
आना कमाल इस्लाम तुरानी फ़ज़ाइल जिल्द 5। फिर उनकी मौजूदगी में मैंने बताया था, मैंने कहा मैं क्योंकि 152 उस वक्त सफ़ा नहीं पढ़ा हुआ था, 152 का मैंने बताया था। मैंने कहा था यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि जब तक मुझ पर तावील वाज़ह नहीं हो गई मैंने अपने अकीदे को छुपाई रखा, यानी कि जब तक अल्लाह ताला ने मेरे दिल में तसल्ली नहीं दे दी। और दिल के तसल्ली देने का मजमून कुरान में भी पाया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ ताकि मेरे दिल को तसल्ली पहुंचे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे दिखा कि तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करता है ताकि तो अल्लाह ताला ने कहा तुम्हें यकीन नहीं है? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल जो है वो इत्मीनान हो जाए, मैं दिली तौर पर मुतमइन हो जाऊं। तो ये दुआएं कि नबी दिल की गहराई से ये चाहता है कि वो मुतमन हो जाए। तो ये मिर्जा साहब ने कहा कि जब तक मुझे तावील पर यानी कि ये अल्लाह ताला समझा नहीं दी मुकम्मल तौर पर, मैंने ये छुपाई रखी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल है थोड़ा वो हवाले के अंदर कीजिएगा, क्योंकि मैंने जब आपने बताया था मैंने आना कमालात इस्लाम और 151 अपने सामने खोला हुआ है। ये मुझे लगता है आपको कोई गलती हो रही है, कोई और किसी और जगह पे है हवाला ना? नहीं, एक मिनट प्लीज। एक मिनट मैंने वो नोट भी किया था। नहीं, 155 या 156 बाल वो तीन का ना? तीन का नहीं, 5 मेरे ख्याल मैं एक मिनट मैं देखता नहीं, 5 का नहीं है ना, मैं ये तो कह रहा हूँ। यार आना कमाल इस्लाम सफ़ा 151-52 है, वो पक्का पता है मुझे। आना कमालात इस्लाम सफ़ा 151 यार मेरे सामने खुली पड़ी है, व्हाट्सएप वहाँ पे नहीं है। उर्दू में या अरबी में? 151 पे, 151 152 पे, दोनों पे नहीं है। आपका उर्दू है या अरबी आपने खोली हुई है? नहीं, वो जो अल इस्लाम पे नॉर्मल बुक खोलते हैं वो खुली हुई है ना, उसका नहीं, उर्दू में ये तो अरबी में आपके पास उसमें सफ़ा अलग खुला से हुआ है नहीं। या उर्दू में खुला हुआ है? उर्दू में खुला हुआ है। और हाँ, जब मैं आप अरबी की ऑनलाइन बात पे कर भी रहा हूँ, मैंने अरबी से किया। उर्दू तो मुझे मिली नहीं आने के बाद इस्लाम आप अल इस्लाम तो बता नहीं, आपको शायद मिली होगी, मुझे नहीं मिली। तो अरबी सफ़ा जो है ना 151-52 वो मैंने गूगल ट्रांसलेटर से किया था। अच्छा ऊपर है सब 152 पे ये लिखा हुआ चलो, है। मेरा ख्याल अमर आपकी सही देश बता सकता है वाला। हाँ जी यार, आप इस्लाम पे सिंपल है। एक मिनट अच्छा, ओपन आई साहब 100 सफ़ा नंबर 152 पे लिखा हुआ है अरबी इबारत में, मैंने तर्जमा करवाया और पढ़ा भी। उसमें ये लिखा हुआ है, हज़रत मुहम्मद फरमाते हैं कि मुझे पता चल गया था कि कुरान करीम और हदीस से कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। ये एक बात है। फिर आगे वो लिखते हैं कि मुझे इस बात का भी पक्का यकीन था कि वो दोबारा आएंगे, ये कीदा था मुसलमानों का, क्योंकि आपको पता है हदीस भी है कि ईसा इब्न मरियम दोबारा नाज़िल होंगे। तो ये दो चीज़ें थी मुख्तलफ। वो कहते हैं कि फिर मैंने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे ये बात समझा दे कि इसको मैंने कैसे हल करना है। तो जब तक अल्लाह ताला मुझे नहीं समझाया मैंने ये बात इंसान के सामने पेश नहीं की। तो इसमें क्या हर्ज है, पहले बताएं। ये मुमकिन है कि आपको एक ही वक्त में दोनों चीजें दुरुस्त लगें, है कि नहीं है? ठीक है। हाँ जी, अब नबी की हाँ जी, दोनों चीजें दुरुस्त हैं और रहनुमाई के लिए आप किसके पास जाते हैं? अल्लाह ताला के पास। और वो कहते हैं मैंने अल्लाह से दुआ की तो मुझे समझा दे अल्लाह ताला। देखो ना, एक चीज है वफात पाना, वो तो कहते हैं मुझे पता चल गया। दूसरी चीज है नाज़िल होना। अब जो बंदा वफात पा जाए वो नाज़िल नहीं हो सकता, लेकिन मुझे यकीन था वो नाज़िल भी होंगे क्योंकि हदीस मौजूद है। चलें ठीक है, चलें इस पे आई थिंक अगर वो समझ आ गई आपका पॉइंट ऑफ व्यू। ओपन आई भाई, आपके पास है फैसिलिटी, आपने खोला है? क्योंकि आना कमालात इस्लाम 151 जो अल इस्लाम पे है ना, इस वक्त तो मैं नहीं खोल सकता है, मैं इस वक्त अच्छा मैंने खोली हुई थी तो मुझे नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि एग्जैक्ट सही वाली जो बात है ना वो उससे पता चलेगी। व्हाट्सएप को भी थोड़ी गलती लगी यार, है कि कोई भी आना कमालात इस्लाम खोल के अरबी में मेरे पास तो अरबी मुझे उर्दू नहीं मिली alislam.org से, तो गूगल ट्रांसलेटर लेके वो स्कैन करेगा, ट्रांसलेट हो जाएगी उसी वक्त। नहीं समझ रहे आप? तो ये बात मैं दिखाता हूँ। लेकिन वो कह रहे थे कि रमसी साहब ने जानबूझकर छुपाई है, जबकि वहां पे वो वजह भी बयान कर रहे हैं कि मेरा बयान करने क्यों नहीं मैं बयान किया उस वक्त, मुझे समझ नहीं आ रही थी जब तक अल्लाह ताला ने मुझे नहीं समझाया। ये है असल नतीजा। ठीक है, तो ये क्योंकि पुरानी तकनीक है उनकी। अब देखे ना, अब जो सुनने वाला है वो तो गुमराह हो गया ना। नहीं बात पता क्या भट्ट साहब, अब हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। पुरानी टेक्निक है, देखें उन्होंने जो समझा उन्होंने बता दिया। अब हमारा मकसद नहीं ओपन आई साहब, ये स्क्रीन बड़ी करोगे से ही जानता हूँ और मैं उनके सामने भी कह चुका हूँ बार बार ये बात, जैसे अहमद नदीर साहब के सामने कह चुका हूँ कि आपका काम है कि इबारत को घुमाना।
यानी कि ऊपर है, बात आप स्क्रीन को कोई बड़ी करेंगे, करना वो है। आपकी बात को घुमा देंगे। जी बट साहब ये देखें यार ये बड़ी यार, ये हो स्क्रीन नहीं बड़ी रही। करना जरा। एक सेकंड, ये कोई मेरा ठहरे जरा, ये नीचे बैठने जैसा बड़ी करेंगे स्क्रीन जरा, आप कर सकती हैं? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या मसला हो रहा है 2 दिन से ये मुझसे। अच्छा चले ऐसे अगर बट साहब ऐसे आपको नजर आ रहा है, ये हाँ देख रहे हैं मोहम्मद अल्लाह अहमद का साहब, वात यहाँ पे इस्लाम। जब उर्दू तर्जुमा है ना, तो ये- यहाँ पे साइडों पे लिखा होता है कि अरबी किस सफा नंबर क्या है। मैं वही दिखाने लगा हूँ। ये देखें, यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन है, इस किताब को डायरेक्टली ऑनलाइन ओपन करना या फिर इसको हाँ PDF करें जरा में। ओपन। जब हम ऑनलाइन खोलते हैं तो 151 पे पहले पे मैंने खोला हुआ था, ये है 151 पेज। यहाँ पे ये देख लें, ये सारी की सारी तहरीर उर्दू में है, सिर्फ यहाँ पे 551 खोले, 551 होगा फिर 551 552। 500, हाँ ये हुई ना, मैं वही कह रहा था कि कुछ हाँ 551 ठीक है, 551 551। 51। अच्छा ओपन साहब नई आपको, सेटिंग आ गई है। हाँ जी ओपन साहब आपको एक और बात सबूत दे देता हूँ। वो तो आप में तहकीक की आप मान भी गए जब आप बड़ा सबूत पेश किया, वो वाला कि हज़रत मसीह मौऊद लिखा कि चूड़े लोगों को भी नबूवत मिल सकती है, याद है कि नहीं याद? तो वहां पे जी, बात याद क्या है। थी पता है ना, वो कैसे पेश हाँ, कर ये क्या बात है? तो 551 तकनीक मैं जब कह रहा हूँ पुरानी, तो मेरे पास सबूत मौजूद है। ठीक है जी बहरहाल जो भी है ये तो चलो हो गया। तो दोनों को देखना चाहिए, क्योंकि बाद में वो जो उसी डिबेट, आई थिंक आप वहीं पे थे, तो उन्होंने कालू साहब ने भी कोई चीज़ पेश की थी, तो बाद में वो मेरा ख्याल है क्या नाम है उनका, उन्होंने आके हवाला पेश किया था कि जिन मुसन्निफ के बारे में या जो आलिम के बारे में बात कर रहे थे उनका तो अकीदा ही नहीं था। वो कह रहे थे, ये तो लिख रहे थे कि लोगों का ये अकीदा है, तो उसकी जवाब दे रहे थे। तो ये थोड़ी सी होती है दोनों साइड से कभी कभी के जो हवाला जात को यूज़ किया जाता है अपने मकासद के लिए, ये नहीं करना चाहिए। बाकी ये कि दोनों को अरे कोई भी करे नहीं करना चाहिए। देखें ये तो नहीं हो सकता मैं कालू साहब को कहूँ दुरुस्त किया, ठीक है ना, कोई भी करे नहीं करना यार ओपन आई भाई, यार आपको बाकी तो चलो हैं, उनका तो मसला है, वो जानते नहीं है ना। आप मतलब इसी घर में इसी खानदान में पले बड़े, आपको लोग सब तो पता गलती लग कर गया सकते हैं ना। मौलाना भाई, आप लोग सुनो तो तो गलती कर सही, सकते हैं। वो कर सकते हैं, पर मेरी पूरी बात सुनो। मुनाजर का क्या काम होता है? अब वो बंदा कल आपको सिर्फ यही प्रूव कर गया कि ये पूरी जो जहान अहमदियत है सारी दुनिया में, वो एक साइड पे है और हजरत मसीह इस्लाम अलग है। आपको समझ नहीं आ रही कि वो कर क्या रहा है? तो वो सब वाज़ेह बात है कि यार सारी दुनिया के अहमदी और हज़रत मसीह इस्लाम अलग अलग डायरेक्शनों में नहीं फिर सकते। ये कोई ना कोई कर रहा है कुफराडबाजी, और ये होता कि बनाजर का ये काम है। उसने अगले बंदे को सिर्फ नीचा दिखाना है, तो उसने कोई ना कोई ऐसी गेम चलाई रखनी है कि धोखा दे ही रखना है। क्या उसको नहीं पता कि हज़रत ईसा इस्लाम को कहाँ पे मानते हैं? क्या उसको नहीं पता कि हुजूर ने अगर फ्यूचर में भी किसी वसील के आने का जिक्र किया हुआ है, वो किसके बारे में किया हुआ है? बल्कि मसीह हिंदुस्तान में खुद किताब नहीं सोचो, की। हाँ खुद जी, सोचो, अगर हिंदुस्तान हजरत में मसीह किताब इस्लाम ने नहीं कह दिया है कि बनी इसराइल के नबी जो हैं हजरत ईसा वो फोत हो गए, वो आ नहीं सकते, तो हुजूर कैसे कह सकते हैं कि जी मसीह वही वाला आ जाएगा? नहीं, मसीह भी इसी उम्मत में से ही आगे इन फ्यूचर में जो कोई पैदा होएगा अल्लाह ताला उसको नाम देगा। आसमान से फिर भी किसी ने नहीं आना। और इन सारी तहरीरों में व्हाट्सएप ने भी जैसे जिक्र किया कि एक इंसान जब एक मजहब में पैदा होता है, उसके ऊपर अकायद की एक छाप होती है, लोगों का एक जमहूर का एक अकीदा होता है, मगर कुछ चीज़ों को वो पढ़ता है, उसको तसल्ली नहीं मिली कि यार हाउ कैन इट पॉसिबल। अब बराहीन अहमदिया में उनको इल्हाम भी हो रहे हैं, मगर एक माशरे के अंदर से एक रिवायती चल भी रहा है अकीदा। तो हुजूर को अपने इनर सेल्फ में इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन नहीं थी, तो उसको अल्लाह ताला ने वही करके समझा के बताया कि ऐसा नहीं है। जिसको वो कह रहे हैं ना कि जी हुजूर को पता था पहले, तो उन्होंने छुपाया, ये छुपाया कुछ नहीं था। अच्छा ओपन आय साहब, दूसरी टेक्निक ये है कि ये इनके उलमा बताते हैं, यूट्यूब पर वीडियो तो मौजूद है, कि आपने मिर्जा साहब पर बात करनी है, कुरान पर नहीं करनी। क्योंकि जब कुरान पर बात करेंगे फौरन बात वाज़ेह हो जाएगी या जल्दी वाज़ेह हो जाएगी। जब किताबों पर जाएंगे, आप इनकी टेक्निक है एक सफ़े से दूसरे सफ़े पर, दूसरे से तीसरे पर, एक किताब से दूसरी किताब पर, फिर अल-फज़ल पर, तशहीद-उल-क़ुरान पर, तो ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं लोगों को, ताकि असल हकीकत का पता ना चले कि कुरान क्या कहता है। तो मेरा ये हमेशा तरीका रहा है कि भाई जो मैं कुरान से साबित करूंगा वही मिर्जा साहब की तहरीर उसका मतलब दिखा दूंगा अगर आपको दिलचस्पी हुई तो। या तो आप कुरान से अपना मुकदमा साबित कर दे और मिर्जा साहब की उसके मुताबिक दिखा दे, तो ये कुरान से तो नहीं साबित करते, ठीक है ना। ना ही मेरी बात हमारी सुनेंगे, ठीक है जी आप कुरान से हम बात करते हैं, नहीं कुरान से नहीं करेंगे। तो ये भी टेक्निक है इनकी, ये समझिए आप।
ये ऐसे नहीं करते, इनको पता है कि हम करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने वो 151 पेज नंबर जो है, मैंने जैसे कि भट्ट साहब ने कहा, मैंने वो ट्रांसलेटर से कर लिया है और वो सामने पेज है, वो देखना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा? आप पढ़ के सुना दिखा दूं दें, भाइयों को? पढ़ लें कि बड़ी नहीं हो रही स्क्रीन यहाँ पे, मैं- पता नहीं क्या मैं मसला है, साथ कल में- भी हो रही थी। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको, अच्छा जी, इस पे जो शुरू से पढ़ देता हूँ। और मैं उन लोगों को जो आपकी पैरवी करेंगे उनको क़यामत तक काफरों पर बरतरी दूंगा। आज आप हमारे साथ हैं, आमीन। अब मेरे नज़दीक एक तौहीद परस्त और मुनफरिद शख्स हैं। आप मेरे नज़दीक एक तौहीद परस्त और मुनफरिद शख्स हैं, इसलिए अब वक्त आ गया है कि आपकी मदद की जाए और लोगों में आपको पहुंचाया जाए, और खुदा तुम्हें अपनी तरफ से सिखाएगा। शरीयत का जायज़ा लिया जाता है और दीन जिंदा आबाद। हमने आपको मसीह इब्ने मरियम बनाया और खुदा आपकी हिफाजत करेगा, चाहे लोग आपकी हिफाजत ना करें, और अल्लाह आपकी मदद करेगा, चाहे लोग आपके साथ ना दें। हक तेरे रब की तरफ से है, लिहाजा ये शक करने वालों में ना हो। ए अहमद, तुम मेरी चाहत हो और मेरे साथ तुम मेरी बारगाह में इस लायक हो। मैंने तुम्हें अपने लिए चुना है कि कह दो कि अगर तू अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। अच्छा, ये 151 का था। अब मैं जी, आगे 152 आगे पढ़े, यहाँ से आगे पढ़े हैं। हाँ जी, अच्छा, इसी से आ गया है। ओके, जी। मुझे लगा कि वो उसने ऊपर से हाईलाइट किया था ना सिर्फ। नहीं अच्छा, करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा और तुम पर रहम करेगा, और वो रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ये इल्हाम और यहाँ पे ट्रांसलेशन पे कोई कुछ लग रहा है मुझे गड़बड़, मीम लिखा है का खुलासा है, और इनमें से एक इल्हाम ये है कि हमने आपको मसीह इब्ने मरियम बनाया, और खुदा की कसम मैं बहुत दिनों से जानता हूँ कि मैंने मसीह इब्ने मरियम को बनाया है, और मैं इनके घर में रहता हूँ, लेकिन इसकी तवील की वजह से मैंने इसे छुपा रखा है, बल्कि मैंने इससे बाज नहीं आया, और मैंने इन लोगों में से एक को तब्दील किया, जो मैंने अपना नाम तब्दील किया, 10 साल तक जाहिर करता रहा, और मैंने जल्दी नहीं की, और ना मैंने जल्दी की, और ना मैंने मोहब्बत की, ना दुश्मन को, ना किसी को। ये अच्छा, यहाँ पे तक हुई स्टॉप जी करते हैं। वो ट्रांसलेशन। कह रहे हैं वहां पे लिखा हुआ कि तवील की वजह से मैंने छुपाए रखा, कि मुझे तवील जब तक समझ नहीं आ गई मैंने ये अकीदा बिल्कुल। नहीं बताया। आगे 152 पढ़े अब, एक 152 सेकंड, पे और ये वजाहत आ जाए। तावील क्या कह रहे हैं? 152 तावील को इसका किसका तर्जुमा कर रहे हैं? जब तावील तक की जो, वजह से? हाँ जी, जब तक जो इल्हामात हो रहे हैं ना मसीह इस्लाम को मुसलसल कि वो इब्ने मरियम है, जब तक उनको समझ नहीं आ गई कि इनकी तावील क्या है, उन्होंने अपने अकीदे को छुपाए रखा। ये सवाल है। यार खत्म नबूवत भाई, मैं एक एग्जांपल दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 152 अलैहि भी पढ़ देना, वहाँ पे और वसल्लम, ये मजीद एक वजाहत आ जाती वाकया है। आता है ना कि हजूर को गारे हिरा में जो है हजरत जिब्राइल आए और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उनको घर चले गए, हजरत खतीजा ने थे। अब हजरत खतीजा कहाँ पे लेके गई थी? हाँ, नहीं समझ आई थी उनका उन्होंने, नौफल के बात पास। पक्की है। उनको 152 वहां पे वो वहाँ पे परेशान थे, ठीक है, उनको नहीं, अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही थी, एहसास हो रहा था। हजरत मसीह इस्लाम भी इसी तरह एक मुसलमान घराने में पैदा हुए थे, बचपन से एक चीजें सुन रहे थे कि इस तरह होगा, इस तरह होगा, मगर हम भी आज कुछ चीजें ऐसी पढ़ते हैं, हमारी तसल्ली नहीं होती यार, हाउ कैन इट पॉसिबल। वो यार मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसी बातें हो 152 गई हैं, पढ़ दें, अगर मगर आज वो प्रूव होती है कि वो सही नहीं है। जी इसी तरह हज़रत मसीह इस्लाम के ज़हन में, दिल में, दिमाग में तो ये चीज़ चल रही थी, मगर साथ में फिर अल्लाह ताला भी समझा रहा था। तो ये उस तरह का मामला है कि जब बिल्कुल क्लियर हो गया तो उन्होंने उसको वाजे कर दिया। पहले जो पता था उसकी तवील करते जाते थे। पहले जब अल्लाह ने कहा वो तवील करते रहे उसकी कि अच्छा नहीं यार, इसका ये मतलब नहीं होगा क्योंकि आना तो आसमान से है। फिर आगे चल के वो भी अगर इल्हाम हो रहा है तो वो उसकी भी तवील करें कि नहीं, इस तरह इसका ये मतलब नहीं, इसका ये है। क्यों? क्योंकि आना तो आसमान से है। यार मगर एक 100 वक्त ऐसा सफा आता है नंबर कि जब 100 हुजूर को यकीन हो जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर हुजूर ने बरमला कह दिया जब कि सफा भी वो आसमान से 152 कोई नहीं आएगा। 152 मैं उसको डॉक्टर साहब अलग से करना पड़ेगा मुझे,
ट्रांसलेट उसकी मैं कर देता हाँ करें। चलो मैं अपन ऐसा बात ये है कि हज़रत मसीह इस्लाम तावील करते रहे कि मसीह जो इब्ने मरियम फिर भी आएंगे, मैं सिर्फ मसील हूँ, यानी कि असल जो ईसा इब्ने मरियम है उन्होंने फिर भी आना है। समझा मेरी बात? तो जब तक ये मामला तय नहीं हो गया, जब तक अल्लाह ताला समझा नहीं दिया, वो तावील करते रहे कि मैं तो मसील हूँ, मैं वो इब्ने मरियम नहीं हूँ जिसने आना है, उसने अलहदा तौर पे आना है। ओपन आइज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चले सलाम। दूसरा भी पढ़ दूं, दूसरा भी हो दूसरा भी गया। पढ़ दे, एक मिनट दूसरा पढ़े। अहमद साहब एक सेकंड यार, एक सेकंड। जी 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 यार एक मिनट, वो पुराना मजमून चल रहा है, उसको मुकम्मल हो रहा है, जी, फिर आप बात करें। सुने यार भट्ट साहब एक सेकंड। सुन लेने दे यार ये सुन पहले ले, पढ़ उनकी लेने सुन दे, ले। फिर बात करते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं बट सब हम पढ़ लेंगे, उनको किसी को तो समझ नहीं आ रही, आप हमारे लिए तो ठीक है ना। और ये मुझे कल भी महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा कानून ने यार किया, आप- बहुत अच्छा उसको पकड़े आप रखा, मगर पढ़ते, जनाब कल पढ़ते, इस फिर बात हवाले खत्म पे हो जाएगी। नहीं की थी बात ना, शायद उनको पता नहीं होगा। बहरहाल इनको करने के बाद ये क्या कह रहे हैं, फिर हम यार आप पढ़ देंगे तो फिर बात करेंगे, तो बात बनेगी कि क्या कह रहे हैं। एक दफा पढ़ दे आप, ठीक? अहमद भाई शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हमें को तो देना नहीं है, अपने लिए पढ़ना है ना, तो पढ़ लेंगे। यार पढ़ दे ना, आप पढ़ दे, ताकि मैंने भी जाना है अरे मामला मैं खत्म हो ड्राइव जाए। करने लग गया हूँ, मुझे किसी अच्छा, सेफ प्लेस ठीक पे है। जाना है, ड्राइव करने लग गया हूँ। जी इनकलाब साहब बोलें, क्या कहना आपने? जी जज़ाकल्लाह ओपन आइज भाई। देखिए मैं यहाँ पे पहली बात हुई कि डिबेट करने नहीं आया। मेरा एक सवाल है जिसको मैं समझना चाह रहा हूँ कि हदीस की रोशनी में इमाम मेहदी का क्या रोल है, क्या किरदार है, वो जरा मुझे बता दीजिए। देखिए अभी ये टॉपिक डिस्कस नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप करना क्योंकि चाह रहे हैं? अगर आप करना चाह नहीं रहे नहीं यार, मैंने जाना है, मैं तो इंतजार करो कि आप 152 पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे और वजाहत अच्छा आ जाएगी। मैं पढ़ा, ठीक है। भाई इमाम मेहदी को कुरान और हदीस में क्या मतलब उसका क्या रोल होगा, उसको जरा बताए ना मुझे। ओपन आइज भाई प्लीज यार, रिक्वेस्ट है आपसे। ये आपके टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इनका ये पहले ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा चलो सुन, मुझे स्क्रीन पे चलाने की जरूरत तो नहीं है ना, मैं खुद ही पढ़ दूं बस। हाँ जी पढ़ दे, पढ़ते हैं, हाँ जी हाँ जी, क्योंकि नजर भी नहीं आ रहा ना। अच्छा मुझे यहाँ ओपन पे आइज में मैं आ रहा हूँ, तर्जमे में फिर आप मुझे बता दे। ओके ठीक है। 152 पेज पे जो शुरू होती है इबारत, वैसे तो एक छोटा सा हिस्सा है जो पिछली इबारत से मिलता है, मुझे पता नहीं क्या है, पर मैं नई लाइन से पढ़ूंगा। फिर मैं इससे मुतमिन नहीं हुआ, बल्कि इसे कुरान और सुन्नत के सामने पेश किया और खुदा से मेरी मदद करने की दुआ की, तो खुदा ने इनके बारे में मेरे गौर व फिक्र का जायज़ा लिया और मुझे उनके हामियों में से बना दिया। कुरानी और अहादीस की नसूस से मालूम होता है कि मसीह इब्ने मरियम वफ़ात पा गए और अपने भाइयों को अंबिया में शामिल कर लिया। मैं जानता था कि मसीह की मौत वाज़े कती कुरानी और हदीस नसूस में एक कायम शुदा हकीकत थी, और मैं जानता था कि मेरा इल्हाम बिला शुबा बगैर किसी इबहाम या उलझन के था। ताहम मुझे यकीन था कि मुसलमानों का मसीह के नज़ूल का अकीदा दुरुस्त है, क्योंकि ये पहले से मैं सुन रहा था, ये दुरुस्त है बगैर किसी शक व शुबा के, इसलिए उनका इतलाक करना मेरे लिए मुश्किल था। मोपनाई भाई समझ रहे हो जो मैंने पहले जी, बात की है? जी और मैं उन लोगों में था जो उबहाम का शिकार थे। मैं सिर्फ नसूस से मुतमिन नहीं था, क्योंकि मैंने अहादीस में इख्तलाफ के धुएं की एक छोटी सी बू महसूस की। हालांकि मजबूत और हतमी सबूत हमारे पास और हमारे साथ में था और पूरा कुरान हमारे पास था, बल्कि मैं मुकम्मल खालिस सफ़ेद इल्म चाहता था जिसमें हर शगाफ चमकता है और सच्चाई के यकीन की तरफ ले जाता है। चुनाचा मैंने खुदा की बारगाह में दुआ की और अपने आप को उनके हजूर पेश किया, नज़ूल के राज को जाहिर करने और दज्जाल की हकीकत को जाहिर करने की ख्वाहिश की, ताकि मैं उसे कुछ इल्म सिखा सकूं और उसके ज़रिए यकीन की आंख देख सकूं। बस उसकी निगहदाश्त मेरी तालीम व फ़हम की तरफ थी और मुझे उससे इल्हाम हुआ और मालूम हुआ कि वही अपने बुनियादी मानी में सही है, यानी कि आप ही सही हो, लेकिन मुसलमानों ने इसकी हकीकत को ना समझा, क्योंकि खुदा ताला इसे छुपाना चाहता था, इसलिए
اس کا فرمان اور مجبوری غالب آ گئی. یہاں تک ٹرانسلیٹ ہوا ہے کیونکہ پورا پیج میرے وہ ٹیبلٹ پہ آ نہیں رہا تھا. جی تو ترجمہ خلاصہ کلام یہی ہے اوپن آئی بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ان کا اپنا دل بھی ان کو کہتا تھا، مطمئن کرتا تھا، مگر معاشرے کے اندر جو بچپن سے سنتے آ رہے تھے، جو جمہور کا عقیدہ تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کی تعویل کرتے تھے. کسی انسان کو اللہ نظر نہیں آتا، کسی انسان کو وحی آتی ہوئی نظر نہیں آتی، انسان کو ظاہر کی چیزیں نظر آتی ہیں. تو ایک وقت تک تو حضور نے کہا کہ یار مائٹ بھی اس کے اندر کوئی چیز ہو، مگر پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنٹینیوس رجوع رہا تو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. اب یہ ماننے والے کے لیے کسی نے کچھ ماننا ہے نا تو وہ ماننے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور کسی نے نہیں ماننا تو وہ نہ ماننے کے لیے 100 ہیلے بہانے کرتا ہے. یہاں پہ ایک بڑا زبردست اعتراض پڑا ہوا ہے غیر عملی کا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی وحی پہ یقین نہیں تھا، اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا، ان کو اسی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو یہ سب ہیلے بہانے ہیں، مگر اس انسان کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے. مگر ایک نیوٹرل بندہ صاف طور پہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں، برت رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی کسی